کتنے لوگ اس گل تے ایمان رکھتے ہیں کہ خدا دا روح اس ٹائم اتنے موجود ہے؟ ایک نعرہ لا کے دسو مجھے ہالےلویا کا، ہالےلویا، پریز دی لارڈ۔ خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے۔ آج کا جو میسج ہے، چونکہ زیادہ آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ جوان لوگ بیٹھے ہیں، تسی سر سب تو زیادہ جوان ہو، تو آج خدا کے کلام میں سے جو کہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے تازگی اور زندگی کا باعث ہے، اپنی رہنمائی کے لیے ایک نصیحت آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کافی سارے لوگوں نے یہ والی آیات پہلے سنی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی تفسیر بھی سنی ہو، تشریح، لیکن آج پھر ہم جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ تو بائبل جن لوگوں کے پاس ہے وہ میرے ساتھ کھولیے پرانا عہد نامہ، وائس کی کتاب میں سے آج ہم پڑھنے کو ہیں۔ ہو سکتا ہے تسی کسی جنازے تھے یا قبرستان سے ورثہ سنیا ہو، تو آج ہم جو ہے وہ اس کی تشریح سیکھنے کو ہیں اور تفسیر کریں گے۔ بہت سے اسکالرز ہیں جنہوں نے اس پہ بات کی، اور ہو سکتا ہے کہ ڈیفرنٹ اینگلز کے ساتھ، یا آج جو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا اس سے ہٹ کے بولا ہو، تو آپ نے جو آپ کے لیے صحیح ہے اس کو سیکھنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ میں سے بھی کوئی غلط ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا معتبر کلام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ہالےلویا۔ 12واں باب نکالیں میرے ساتھ، پہلی 8 آیات۔ چونکہ ٹائم کم ہے، پریشان نہ ہو، کچھ لوگ 8 سننے کے اچھا ٹائم کم ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بالکل تھوڑے سے ٹائم میں، صرف میں کوشش یہ کروں گا کہ ہم اس کو سمجھ جائیں کہ بیسیکلی یہاں پہ خدا کا کلام ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے۔ جی تو کسی نے نکالا؟ میں چاہتا ہوں کہ جماعت میں سے کوئی بہن یا بھائی رہنمائی کرے پڑھنے میں۔ اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کو یاد کر۔ اگر بائبل مقدس ریفرنس والی کسی کے پاس ہو تو اس میں لکھا ہے نوجوانوں کے لیے نصیحت، لیکن میں نے جو اس کا ٹاپک جو ڈیسائیڈ کیا وہ ہے اپنے خالق کو یاد کر۔ جی جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے، جبکہ برے دن ہنوز نہیں آئے۔ اس لفظ کے ساتھ آج ہم آج کے میسج کو سٹارٹ کریں گے۔ ہنوز، لفظ ہنوز جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک، یا اس وقت تک، یا ہجے تک، ابھی تک برے دن نہیں آئے، تو اپنے خالق کو یاد کر۔ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ اگر ساتھ نہیں رہیں گے تو مجھے پھر لگے گا کہ شاید میں بولنے دیا تو سنن کوئی بھی نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے ساتھ رہنا ہے۔ جی اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن سے تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں، جبکہ ہنوز سورج اور روشنی اور چاند اور ستارے اور تاریخ نہیں ہوئے، اور بادل بارش کے بعد پھر جمع نہیں ہوئے۔ غور سے سنیے ذرا۔ اس روز گھر کے نگہبان تھرتھرانے لگے، اور زور آور لوگ کھٹکھٹاتے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، اور پیسنے والیاں رک جائیں، اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ہیں۔ جی پڑھے۔ کھڑکیوں سے
जाएं, कबाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे और नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाएं, हाँ जब वो चढ़ाई से भी डर जाए और दहशत राह में हो और बादाम के फूल निकले और टिड्डी एक बोझ मालूम हो और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपनी अपनी मकान में चला जाएगा और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे। बेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और घड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और हौज का चराग और हौज का चरख टूट जाए और खाक से जाए, जिस तरह जा मिले और जिस तरह आगे मिली हुई थी और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। बातिल ही बातिल, वारिस कहता है सब कुछ बातिल है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आमीन। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये वर्सेस पहले सुनी हुई है? हाथ का इशारा करो। ठीक है, चलें। ये जो आयात हैं, ये जो पैगाम लिखा गया खुदा के पाक रूह की इंस्पिरेशन के साथ, सुलेमान बादशाह तो जानते हो ना, ये उसने लिखा है। और आज का जो खाका है बेसिकली ये एक ड्रामाई शक्ल में लिखा गया है। ज़हन में आ रही थी ना बातें आपकी, निगहबान थरथराने लगे, जोरावर टुकड़े हो जाएं। ज़हन से कोई तस्वीर बन रही है कि नहीं? जी बनती है ना। तो आज हम इसकी तफसीर करने की कोशिश करेंगे और बाइबली मतन के साथ, बाइबल मुकद्दस के अकॉर्डिंगली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब की है। ये जो खाका पेश किया गया, ये जो ड्रामाई शक्ल बनाई गई, इसमें अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए गए, इसमें जुमले ऐसे कसे गए कि वो एकदम से बंदा किसी फिल्म या ड्रामे से पहुंच जाता है। ठीक है, तो आज हम जो है वो खुदा के इस खूबसूरत कलाम में से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली आयत क्या थी, किसी को याद है? अपने खालिक को याद कर, उस तो के निगहबान क्या होता जी? जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे। घर के निगहबान, मैं आपको बताता चलूं कि ये बात जिस्म की हो रही है, बॉडी की, बदन की, और ये जिस्मानी बात है। हो सकता है किसी स्कॉलर ने इसको रूहानी तौर पे भी पेश किया हो, बल्कि आगे चल के मैं ऐड करूंगा, लेकिन ये जिस्म की बात है, बॉडी की बात है, मेरी और आपके जिस्मानी चाल चलन की बात हो रही है। तो लिखा है जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगे। अगर एक एग्जाम्पल के साथ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अचानक से मेरी तरफ कोई चीज फेंक दे, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा? आपके ज़हन में क्या आता है? की करांगे? क्यों जी रमेश भाई? सेल्फ डिफेंस करेंगे, और उसके लिए इस्तेमाल क्या करेंगे? आपके हाथ। क्यों से मांडे हाथ? घर के निगहबान जो है वो आपके हाथ होते हैं। जब कभी आपको कोई मारता है या अचानक से कोई चीज आपकी तरफ आती है तो फौरन अनकंडीशनली, ठीक है, बंदा सोचता भी नहीं लेकिन हाथ फौरन दे, क्या होता है जी? निगहबानी के लिए खड़े हो जाते हैं। तो इसका जो मतलब है वो है आपके दोनों हाथ। लिखा है कि हनूज वो दिन, अभी आपके जो हाथ हैं वो सलामत हैं।
उनके अंदर जोर है कि आप अपने घर का डिफेंस कर सकें, आप अपने घर की हिफाजत कर सकें और हर तरह से अपने घर को जो है वो संभाल सकें। मैंने शुरू में कहा ये जिस्म की बात है, इसलिए आपने यहाँ पे रहना है, किसी और जगह पे सोच को नहीं लेके जाना, ताकि आज हम कलाम को सीखें। और ये डॉक्ट्रिनल मैसेज है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको गौर से सब लोग सीखें कि इन बातों का मतलब क्या है, क्योंकि सुनते तो हम हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हो सकता है कब्रिस्तान सुनी हो गया था या जनाजे थे, लेकिन अक्सर औकात ये पढ़ते हैं हम लेकिन उस पर बात नहीं करते। जी ये इंसान के दोनों हाथ हैं जो आपके घर के निगहबान हैं। उसके बाद तीसरी ही आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ है जोरावर लोग कुबड़े हो जाएंगे। अब ये जोरावर लोग जो है वो कुबड़े हो जाएंगे, जवानी से बुढ़ापे की तरफ इशारा दिया जा रहा है। जब इंसान जवानी के अंदर होता है तो वो जोरावर होता है, उसके अंदर जोर होता है, लेकिन जब वो बुढ़ापे की तरफ जाता है तो क्या होना शुरू हो जाता है? क्या होना शुरू हो जाता है? कमजोरी। कुबड़े से मुराद फिलहाल कमजोरी की बात हो रही है कि इंसान देखे, फॉर एग्जाम्पल एक तोड़े की हम अगर बात कर लें, वजन हो जिसमें, अब इस कंडीशन में जब मैं जवान हूं तो हो सकता है मैं आराम से उठा के उसको अपने कंधों पे रख लूँ, लेकिन जब बुढ़ापे में जाना शुरू हो जाएगा इंसान तो हो सकता है वो उठा ले लेकिन कुबड़ा होके उठाएगा। तो मेरा ख्याल है ये सेंस क्लियर हो जाता है, कमजोरी की बात हो रही है। तीसरी आइटम, मैं असल में जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम भी थोड़ा दिया गया है। तो तीसरी ही आइटम कलसा में लिखा है और पीसने वाली रुक जाएंगी, की जैन चादर और पीसने वाली तालियां बजाएंगी बनवर साहब के लिए। मैंने कहा कि ये जिस्म की बात है, इधर ही रहना है, इसलिए ये सेंस जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। पीसने वाली रुक जाएंगी से मुराद है आपके दांत। जो बंदा जवान होता है ना जनाब, जो भी लभे हैं कागजी बादाम ना भी होने तो बंदा कोशिश कर लेता है। तो आपके दांत जो है वो बेसिकली पीसने वाली रुक जाएंगी। ये बात हो रही है फ्यूचर की, रुक जाएंगी, रुक गई नहीं। यानी अभी जो हम जवान लोग बैठे हैं, हमारी जो कंडीशंस है वो बूढ़े लोगों से थोड़ी मुख्तलिफ है। क्यों? क्योंकि हम अभी जोरावर हैं, जवानी की हालत में हैं। इसके बाद तीसरी ही आयत मुकद्दसा में हमने पढ़ा वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएंगी। तुसी चौपड़े हो खान साहब, वेरी गुड, अपने लिए तालियां बजाएं। मतलब मैं सिखा पा रहा हूं। झांकने वाली हमारी आंखें हैं। देखें खिड़कियों से, खिड़की की है ये आंख के ऊपर जो खिड़की है, ओके गॉट इट। इसके अंदर जो हमारी आंख की पुतली है हम उससे झांकते हैं। खिड़कियों से झांकने वाली रुक जाएंगी या धुंधला जाएंगी। क्या होता है कि जवानी से जब बंदा बुजुर्गी की तरफ जाता है तो आंखें जो है वो धुंधलाना शुरू हो जाती है। मोतिया कभी किसी को मोतिया आ जाता है, मोतिया नाम ही आए तो धुंधलाना, दूर की नजर नजदीक की नजर, ये कैफियत जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो कलाम हमें ये बताता है कि अभी तक वो वाले दिन केड़े दिन नहीं आए। कोई बता सकता है? बुढ़ापा नहीं आया, वेरी गुड। उसके बाद चौथी आयत मुकद्दसा में एक और ड्रामाई शक्ल के अंदर एक मुकालमा लिखा गया और लिखा है और गली के कुआड़े बंद हो जाएंगे। किसी ने पता है कुआड़े क्या होते हैं? ना जिस्मानी गल है, रूहानी नहीं। जरा मैं कहा अभी किसी ने नहीं पता, घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज है, इतने भी है भाई। चलो कुआड़े बहुत बहुत करीब है ये बेटी। कितने क्या
वेरी गुड, बहुत करीब है। ओके, खिड़की और दरवाजे का जो पल्ला होता है ना, उसका जो एक पहलू होता है, उसका कवाड़ होता है जिससे वो खुलता और गल समझ आई। और तो होगा क्या? अब बेसिकली ये हमें जो इशारा मिल रहा है, अगर इस चर्च का दरवाजा बंद कर दिया जाए, कवाड़े बंद हो जाएं, तो क्या मैं और आप बाहर जा सकते हैं? क्या हम भाग दौड़ कर सकेंगे बाहर? नहीं कर सकेंगे। तो लिखा है कि अभी बुरे दिन नहीं आए कि तेरे कवाड़े बंद हो जाएं, यानी कि हजेसी चल फिर सकते हैं, अभी हम भाग दौड़ सकते हैं, अभी मेरे और आपके लिए वक्त है। तो हमने क्या करना है? अपने खालिक को याद कर, क्योंकि अभी तू जवान है, अभी तेरे अंदर जोर है, अभी तेरे अंदर ताकत है, और तेरी भाग दौड़ भी बंद। जब बुजुर्ग हो गए, मंजी पे पै गए, तो फिर गली के कबाड़े बंद। अभी देखा तो जनाब इधर खड़ा था, हो सकता है 5 मिनट बाद आपको G8 वो दूसरी कॉलोनी में मिले। क्यों? क्योंकि अभी चल फिर रहे हैं ना, अभी गली के कबाड़े जो है वो बंद नहीं हुए। चौथी आइटम कलसा में लिखा है जी, और चक्की की आवाज, शायद लोग बोलने मतलब खैर गया, और चक्की की आवाज धीमी हो जाएगी। कोई गाल आंदी है सेंस? और चक्की की आवाज धीमी हो जाएगी। नहीं कहा सब ने जी। और चक्की की आवाज, मेरी आवाज सही आ रही है किसी ने? कोई ऐसा शख्स है जिसको मेरी आवाज कम सुनाई हो दे रही हो, या धीमी, आस्था? शाबाश, तालियां बजाएं इस बहन के लिए। ये कान की बात हो रही है। आज हमारे कान जो है वो बिल्कुल दुरुस्त काम करते हैं, सही सुनते हैं, लेकिन जब हम बुजुर्गी की तरफ जाएंगे, जब हम बुढ़ापे के अंदर जाना शुरू करेंगे, तो हमारी जो कान है इसको आवाज कम आना शुरू हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, और हो सकता है ऐसा वक्त भी आ जाए कि बिल्कुल सुने न जाए। अक्सर हमने घरों में देखा होगा बुजुर्गान उच्ची आवाज से बोल के दसना पैदा भाई साहब सलाम। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो है आपके धीमी अभी नहीं हुई, इसलिए अपने खालिक को याद कर, क्योंकि अभी तेरे कान जो है वो सलामत है, अभी चक्की की आवाज जो है वो धीमी नहीं हुई। इसके बाद चौथी आइटम कलसा में ही अगला जो हिस्सा है लिखा है, और इंसान चिड़िया की आवाज से भी चौंक उठे, और इंसान चिड़िया की आवाज से भी चौंक उठे। तो गाला नहीं सेंस खान साहब, और इंसान दिल कमजोर, वाह, और कोई बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सबके जवाब ठीक है, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। जब गौर से सुनिएगा, जब इंसान जवानी से बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसके अंदर एक कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है, और वो कैफियत ऐसी होती है कि कभी कभी तुसी एक्सपीरियंस तजर्बा भी किया होगा। घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो कभी कभी ना भाई कोई बोलता भी नहीं, दरवाजा मार देने। कभी तजर्बा है किसी ने हल्की सी भी कोई आहट हो गई तो फौरन बुजुर्ग उठ गए और जनाब बोलना शुरू हो गए, चौंक उठते हैं कि कौन आ गया। तो बेसिकली ये जब बुजुर्गी के अंदर दाखिल होते हैं तो ये बुजुर्गी की कैफियत है। जब इंसान कोई गल भी नहीं होती तो चौंक उठ जाए, तो ये बुजुर्गी की
कैफियत है, अभी ये कैफियत मेरे और आपके ऊपर नहीं आई, इसलिए अपने खालिक को याद कर, क्योंकि हनूज दिन बुरे नहीं आए। अभी वो दिन नहीं आए कि आप जनाब एवं लेटे पे फौरन अचानक से चौंक उठे, या बैठे बैठे किसी सोच के अंदर अचानक से आप जो है वो डर जाएं या चौंक उठें। तो अभी वक्त है कि हम जो है वो टाइम में इशारा करा देगा। ऑलराइट, तो शुरू नहीं हो गया। चौथी आइटम कलसा में ही हमने पढ़ा, और नगमा की सब बेटियां की सी, किसे याद है? ज़हीफ। ज़हीफ क्या होता है पता है किसी? बूढ़ा बुजुर्ग हो जाना। नगमा की सब बेटियां, कोई बात ज़हन में आती है किसी के? हड्डियां, और कोई बेटी बहन कोई भाई? नगमा की सब बेटियां। नगमा से कोई बात नहीं याद आती आपको? नगमे, गाने, गीत, बेटे वाह खान साहब, बिल्कुल तालियां बजाएं इनके लिए। नगमा की सब बेटियां ज़हीफ हो जाएं, अभी ये दिन नहीं आए। तो नगमा की सब बेटियां ज़हीफ होने से मुराद ये है कि हम जब गाते हैं तो हमारे गले के अंदर किसी क्या वेन्स होंदियां ने, नाड़ा होंदियां ने। जब इंसान बुढ़ापे में जाता है तो आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अगर सर्च करके देख लें तो बहुत खूबसूरत जो सिंगर्स थे, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, गाने गाने वाले, गजलां भी, गीत भी, तो उनका हाल क्या होता है कि जब वो जवानी में होते हैं तो उनकी जो नगमा की बेटियां यानी गले की जो वेन्स होती हैं वो पावरफुल होती हैं, लेकिन जब वो बुजुर्गी में जाता है तो उसका गला जो है वो कमजोर, वीक होना शुरू हो जाता है। हो सकता है जवानी चो 15 गीत गा के भी थकदा ना होवे गला, लेकिन बुढ़ापे से जो आए थे 2 गीता तो बाद ही के यार बस मैं थक गया, मेरा गला थक गया। हाँ सब ऐसे ही होता है ना। तो बेसिकली ये जो नगमा की सब बेटियां ज़हीफ होने से मुराद है, ये आपके गले की वेन्स हैं, या आपका गला, आवाज कह सकते हैं हम उसको। तो अभी खुदा ने आपको वक्त दिया है कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का जो हमारा जो यहाँ पे इकट्ठे होने का जो मकसद भी था, वो एक खान साहब थे, एक खुदा के वर्शिपर थे, जिन्होंने अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर खिदमत की, और मैं उनको जहाँ तक जानता हूँ वो ज़ाती तौर पे, इनफरादी तौर पे बहुत अच्छे इंसान थे, बड़े शरीफ आदमी थे, और उन्होंने बहुत खिदमत की। आज पता नहीं क्या वजह है कि शागिर्द उनका कोई नहीं नज़र आ रहा 2-3 के अलावा। ये अफसोस की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, मैं ये दुख के साथ बात कह रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो खिदमत की वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ बहुत मोहब्बत, बड़ी शफकत दिखाई, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ उनको। तो इस वजह से अभी आप जो जवान हैं, हम जो जवान हैं, हमारे पास वक्त है कि हम अपने गले को इस्तेमाल करें। और गले को इस्तेमाल किस काम के लिए करना है, कोई बता सकता है मुझे? हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए, उसके नाम के लिए, उसकी प्रस्तुति के लिए जोर लगा के गाएं। लेकिन खाली जोर भी नहीं लाना, सीखना जरूर है। उस्ताद जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, खा वो म्यूज़िक हो या खुदा का कलाम हो। तो सीख के आप अभी गा सकते हैं, आपके गले जो है वो, आपकी आवाज़ें जो है वो अभी कायम है। अभी आपके ऊपर वो दिन नहीं आए कि आप गा ना सकें, लिहाजा आप खुदा की प्रस्तुति कर सकते हैं। आगे लिखा है 5वीं आयत में, हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाएंगे। जी हाँ, जब वो चढ़ाई कोई आगे तो डर गए या रुक गए।
آپ کی ٹانگیں. جب انسان جوان ہوتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگوں کو سیر کرتے ہیں جو چوٹیاں بہت بڑی بڑی, تو جوان لوگ ہوتے ہیں, ان کو ڈر نہیں لگتا کیونکہ ان کی ٹانگوں میں زور ہوتا ہے, ان کی ٹانگوں میں انرجی ہوتی ہے کہ وہ اس کو پار کر سکیں یا چڑھائی جو ہے وہ چڑھ سکیں. لیکن جب بزرگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے, جب بڑھاپے میں آتا ہے, تو پھر جو ہے وہ ڈر جاتا ہے. کئی دفعہ بزرگان کو نہ ہو جی پیدل فلانی جگہ سے جانا ہے تو وہ اس سے کترا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے چلنا پڑے گا, یا جن کی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں وہ کتراتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ اب مجھے یہ چڑھائی یا پیدل جانا پڑے گا. تو ابھی آپ کے اوپر یہ وقت نہیں آیا, ابھی خدا نے آپ کو وقت دیا ہے کہ آپ اس کی خدمت کر سکیں, اور یہ خدمت کے ساتھ ساتھ آپ اس کے گھر میں جا کے اس کا نام لیں, اس کے کلام کو سیکھ سکیں, آپ کی ٹانگیں سلامت ہیں. ابھی یہ وقت ہے, لیکن چلو آگے جا کے دس میں جی. اس کے بعد اگلی بات جو ہے, اور دہشت راہ میں ہو, اور دہشت راہ میں ہو, یہ بھی ایک بزرگی کی جو ہے وہ کیفیت ہے. یعنی وہ جیسے گھر میں بیٹھے بیٹھے چونک جاتے ہیں, اسی طرح راستے میں بھی کئی دفعہ آپ میں سے بھی کسی کا تجربہ ہوا کہ بزرگ کسی کو جناب وہ گالاں کڈنا شروع ہو جاتے ہیں یا ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایک عجیب سی کیفیت جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ڈیولپ ہو جاتی ہے, اور ان کو دہشت آنا شروع ہو جاتی ہے, خوف آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. جی اس سے آگے لکھا ہے, یہ بڑی جو اس کا نچوڑ ہے اور بڑی خاص جو بات ہے اس کے اندر, وہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا. اور بادام کے پھول نکلیں, یہ بات کی بات ہے نکلنے کی. بادام کے پھول سے کسی کو کوئی بات یاد آتی ہے؟ ویری گڈ, خان صاحب کے لیے تالیاں بجائیں جی. چٹے بال پادری صاحب سلام. تو بادام کا درخت کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ اوکے, اس کے پھول کس رنگ کے ہوتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ پنک کلر, دو رنگ ہوتے ہیں. یس, بادام کا جو پھول ہوتا ہے اس کے اندر پنک کلر ہوتا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ جس طرح سیر کے اندر کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے. یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے بادام کے پھول, یہ بالوں کی بات ہو رہی ہے. جب انسان ان کو یہ نہ تنقید کرنے واسطے کہنا شروع کر دے کہ جوانوں دے بھی چٹے ہوندے نے, تو وہ کسی بیماری سے ہو سکتے ہیں. لیکن خدا کا کلام یہاں پہ جو سکھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے تو اس کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی کہ بادام کے پھول جو ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے آگے لکھا ہے جی, اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو اور خواہش مٹ جائے. اور ٹڈی ایک بوجھ, یعنی بہت بڑا پہاڑ نظر آوے. ٹڈی پتہ ہے نا آپ سب کو چھوٹی سی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی انسانی کیفیت کی بات ہے, سوچ کی بات ہے, اس کا جو نظریہ ہے وہ بدل گیا. یہ وہی نوجوان ہے, یہ وہی جوان ہے جب جوانی کے اندر تھا تو اس کے بہت بڑے بڑے منصوبے تھے. میں گڈی لینی ہے, میں مکان لینا ہے, میں کرنا ہے, میں وہ کرنا ہے, میں بھی کرنا ہے. لیکن جب بزرگی کے اندر آیا تو ٹڈی بھی اس کو جو ہے وہ کیا لگنا شروع ہوگی جی, بوجھ لگنا شروع ہو گئی. حالانکہ بہت چھوٹی چیز ہے, لیکن یہ بڑھاپے کی کیفیت ہے. یہ بڑھاپے کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے تو اس کی سوچ ہے, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے. پھر لکھا ہے کہ خواہش جو ہے وہ کیا ہوتی ہے جی, خواہش مٹ جاتی ہے. پھر سارے منصوبے, سارے پلان ختم. اکثر اسی کدی کدی کہتے ہیں کہ وہ تصویر والی بات کہ بڑھاپے میں آ کے ہونا لا لائی کرنا سنا. تو
तो बेसिकली जब इंसान बुढ़ापे में आता है तो उसकी जो ख्वाहिश है वो मिट जाती है, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में चला जाएगा। ये जो बात है, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकान में, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे बैठे हर एक इंसान को मालूम है कि इंसान का अब्दी मकान कौन सा है। ज़मीनी जो मकान है ये महज कुछ वक्त के लिए है, लेकिन अब्दी मकान जो है वो, यानी ये एक मरन की गल हो रही है, ठीक है जी। यहाँ पे ये बिल्कुल मरने के करीब है, करीबुल मर्द है, और मातम करने वालियां गली गली फिरेंगी। ये हमारे रिश्तेदार, बहन भाई, बीवी बच्चे हो सकते हैं। जब इंसान मर जाता है तो कुछ दिन के लिए मातम करने वाले लोग भी दूर और नज़दीक से आते हैं, और कुछ दिन मातम किया और फिर चले गए। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि इसको ख़त्म कर सकें। छठी आयत में लिखा है, इससे पेशतर की चांदी की डोरी खोली जाए। ये बड़ी खास बात है, जरा गौर ना, जिन्होंने जल्दी भी है मैं उन्होंने कह रहे कि गौर ना सुन लो, क्योंकि ये बहुत खास डॉक्ट्रिन है। ये कभी कभी जो है वो मौका मिलता है। तो पेशतर इससे कि चांदी की डोरी की है जी खोली जाए। किसी के जहन में कोई बात आती है? चांदी की डोरी इंसान के जिस्म के अंदर कौन सी हो सकती है? क्या था? और कोई? चांदी की डोरी, मैंने कहा ये जिस्म से रिलेटेड है बात, मालो दौलत वो अलग चीज है। ये किसी को बल्कि अक्सर देखा होगा, एक्सरे आप जब देखते हैं, किसी ने रीढ़ दी हड्डी का कभी एक्सरा देखा? देखा? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੰਢਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, गिरा डोरी। अब डोरी को भी तस्वर में लेके आए, कोई रस्सी, और अब जो है वो आप तस्वर में लेके आए रीढ़ की हड्डी। ये आपके सर से लेके बैक बोन, ये जो रीढ़ की हड्डी है, बेसिकली यहाँ पे खुदा का कलाम रीढ़ की हड्डी के बारे में बता रहा है। इससे पेशतर, और कई लोग जो उन्होंने कोई प्रॉब्लम रीढ़ की हड्डी की हो जाती है तो वो किसी काम नहीं रह जाते हैं, यानी उसके बाद वो उनके लिए हिलना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुदा का कलाम फरमाता है कि अभी तेरी रीढ़ की हड्डी सलामत है, इसलिए अपने खालिक को याद कर। आगे लिखा जी, और सोने की कटोरी तोड़ी जाए। और सोने की क्या, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? मुझे पहले ये बता, सीख रहे हैं आप लोग? क्या मैं आपको सिखा पा रहा हूँ? एक हालेलुया का नारा लाओ, हालेलुया। हम एंडिंग में है, बिल्कुल एंड पे है। असल में ये टॉपिक ऐसा है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपके साथ एक्सप्लेन किया जाए। सोने की कटोरी, बाहर नहीं जाना, जिस्म नहीं रहना है। इस बेटी के लिए जोरदार दिल इसको बाहर है, अगली आयत से वो भी ध्यान दसने। हाँ जी, सोने की कटोरी। इंसान का ये जो सर है ना, इसके अंदर एक हराम मगज होता है, पता ना तेन? अभी आपका जो सर है ना वो बिल्कुल सलामत है। सोने की कटोरी से मुराद है आपका मगज, जो कि आपके इस कटोरे के अंदर, गल समझ आ रही है? आपकी सोने की कटोरी जो है वो अभी तक तोड़ी नहीं गई। से मुराद ये है कि आपके सेंस जो है, आपकी सोच जो है, आपकी अकल जो है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है। जब तक आपकी अकल काम कर रही है, इट्स मीन कि आपका दिमाग जो है वो, क्योंकि अकल का ताल्लुक जो है वो सेंस का ताल्लुक जो है वो, बोले सेंस का ताल्लुक किससे है? यस, ब्रेन के साथ, आपके दिमाग के साथ। तो यहाँ पे खुदा का कलाम जो है वो सोने की कटोरी जो है वो दिमाग के साथ इसको रिलेट करके सिखाना चाह रहा है। इसके बाद लिखा जी, और गड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए। जी, एक घड़े की गल हो रही है जिहदे च पानी पा के पीवी दा कूलर समझ लो। चश्मा पर
फोड़ा जाए। किसी के ज़हन में कोई बात आती है? अब ये कंडीशनल बातें हो रही हैं कि ऐसा हो सकता है और होता भी है यकीनन 100%। जी, तो गड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए से मुराद है इंसान का, यस, इंसान का दिल। इंसान जड़ा ना होगा दिल जड़ा वो इसको तशबीह देता है गड़ा चश्मा पर। अभी हम लोग बैठे हुए हैं, खुदा ना करे यहाँ से कोई भाई या बहन बाहर जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? गड़ा दिल, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे गड़ा जो चश्मा पर फोड़ा जाए से मुराद है ये इंसान का दिल है। और ये जो कैफियत है ये आजकल तो वैसे बच्चों भी होने है, लेकिन ये जिस वक्त की लिखी गई है ना बाइबल मुकद्दस, उस वक्त जब बहुत उम्र के लोग होते थे तब जाके जो है वो दिल काम करना बंद होते थे। अभी हमारे दिल जो है वो मजबूत हैं। अभी हमारे दिल जो है वो क्या है जी? मजबूत है। अभी वो दिन नहीं आए कि हमारे दिल जो है वो काम करना छोड़ दे। लिहाजा क्या करना है जी? अपने खालिक को याद कर। हालेलुया। आगे लिखा जी और होश का चिराग टूट जाए। आखिरी 2 पॉइंट्स में हम और होश किसी ने पता क्यों है? तालाब हो सकता है। होश का चिराग टूट जाए, टूट जाए। इंसान का बदन, हमारे अंदर जो रूह है, अगर वो निकाल ली जाए तो ये जो हौज है, खाक जो है वो खाक में जा मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिकली इंसानी बदन के साथ जो है इसको रिलेट किया जा रहा है। इंसान का जो जिस्म है, बदन है, वो हौज का चिराग टूटना इसके साथ मिलाया गया है। आखिरी बात जो बड़ी खास और बड़ी ज़रूरत है जो हमारी, अब ये सारी बातें हमने सीख ली जो बाइबल, ये मुश्किल बातें थी जो लिखी हुई हैं और बड़ा के आसराइयाँ बहुत सी होती हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस की रूह से जो चीज़ें हमने सीखी मैंने आप तक पहुँचाई। और आज का जो मैसेज था, मैंने शुरू में कहा कि ये एक नसीहत है। इसका जो टॉपिक हमने चुना था अपनी रहनुमाई के लिए वो था, बोले वो क्या था? अपने खालिक को याद कर। मुकाशफा 20 बाब और उसकी 15वीं आयत निकालें जल्दी जल्दी से जरा। मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ, टाइम कम है। यहाँ पे लिखा है, गौर से सुनिएगा। और जिस किसी का नाम किताबे मुकद्दस में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला जाएगा। तो जिसो आज खुदा ने बहुत ही खूबसूरत नसीहत एक स्टोरी की शक्ल में, ड्रामाई शक्ल में, एक खाके की शक्ल में हम तक पहुंचाई। यहाँ पे शायर हजरात बैठे हैं तो कई दफा शायरी जब करते हैं तो बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब बड़ा सादा सा होता है, लेकिन वो आम लोगों को नहीं समझ आता। तो ऐसे ही कलाम मुकद्दस भी जो है वो इसी तरह से है। तो अब जो है वो हमने इस बात को याद रखना है कि इंसान, आखिरी आयत जो थी 8वीं आयत क्या थी हमने पढ़ी? बातिल ही बातिल। यहाँ पे बड़े टूटे दिल के साथ, बड़ी अफसुर्दगी के साथ सुलेमान जो है वो लिखता है कि इंसान बातिल ही बातिल है। हमारे इस हौज के अंदर से एक चीज भी अगर कम हो जाए ना तो हम जो है वो अधूरे हो जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि इंसान बातिल ही बातिल है। कोई चीज भी, हाथ ना रहे, टांगे ना रहे, दिल ना रहे, आंखें ना रहे, तो हम जो है वो
بیکار ہونا شروع ہو جائیں گے. اس لیے عزیزو آج وقت ہے, ہنوز دن برے نہیں آئے. آج وقت ہے, آج ہمارے ہاتھ بھی قائم ہیں, آنکھیں بھی قائم ہیں, دانت بھی قائم ہیں, دل بھی قائم ہے, ٹانگیں بھی قائم ہیں. اس لیے خدا کا کلام پہلی آیت مقدسہ میں کہتا ہے کہ اپنے خالق کو یاد کرنے کی جب کلام بات کرتا ہے, جب کلام مقدس یہ چیلنج دیتا ہے کہ اپنے خالق کو یاد کر, تیرا مطلب, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل کے ساتھ بات کی جائے. اس کا تعلق جو ہے آپ کے عمل کے ساتھ ہے. یاد رکھیے گا, یہ جو لفظ یاد ہے یہ آسان لفظ نہیں ہے. جب کلام آپ کو یہ چیلنج دیتا ہے کہ اپنے خالق کو یاد کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ سختی کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھیں. سختی کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے. یہ ہے اپنے خالق کو یاد کر. تے جے انج کریں گے تے پھر مکاشفہ دی گل سانوں لب سکدی جے. اگر کتاب حیات میں نام نہ لکھیا ہوا ملیا تو مل کیسے سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اس کو یاد کرنے سے. اور یاد کرنے کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے. آخری آیت مقدسہ افسیوں 4 باب اس کی 22 سے 24 آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, غور سے سنیے گا. لکھا ہے کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. پرانی انسانیت کو اتار ڈالو. آگے لکھا ہے جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے, اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ, اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. عزیزو آج کا یہ سارا جو میسج تھا, یہ ساری جو باتیں تھی, یہ ساری جو نصیحت تھی, یہ جو ہم نے مکاشفات سیکھے, یہ تب قائم رہ سکتے ہیں جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالیں گے. خدا کے, میں نے کہا کہ خدا کو اپنے خالق کو یاد کر. خالق کو یاد کب رکھ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنی پرانی انسانیت کو اتار دیں گے, اور روح القدس کی مدد کے ساتھ, روح القدس کی گائیڈنس کے ساتھ یہ ممکن ہوگا کہ ہم اپنے خالق کو یاد رکھ سکیں. اور پالوس رسول نے بہترین طور پہ سکھا دیا کہ یہ تب ممکن ہے جب آپ اپنی پرانی انسانیت کو اتار ڈالیں گے, کیونکہ وہ بہت بری ہے. جب ہم نئی انسانیت پہنیں گے تو پھر یہ ممکن ہوگا, بڑا سکون ہو جانا ہے, یہ ممکن ہوگا کہ ہم خدا کو یاد رکھ سکیں, ہم اپنے خالق کو یاد رکھ سکیں. کیونکہ 8ویں آیت مقدسہ میں ہم نے پڑھا کہ باطل ہی باطل, کوئی ایک چیز بھی میرے اندر ایسی نہیں جڑی ابدی ہے یا جڑی باطل نہیں, جڑی فانی نہیں. ہم جتنے مرضی یہاں پہ فنکار بن جائیں, ہم جتنے مرضی سینئر اپنے آپ کو بنا لیں, ہم جتنے مرضی یہاں پہ بڑے عہدوں پہ فائز ہونے کے بعد چھوٹے لوگوں کو کچھ نہ سمجھیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم صرف اور صرف کیا ہے جی, باطل ہیں, باطل ہی باطل. میرے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ابدی طور پہ مجھے ملی ہو, کیونکہ ابدیت کے اندر تو ہم نے جانا ہے, اور وہ تب ممکن ہوگا جب تو اپنے خالق کو. لہذا میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, ابھی ہم جوان ہیں, ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ہنوز برے دن نہیں آئے, ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں, ابھی ہم اپنے اس گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں, ابھی ہم اپنی آنکھوں سے, کھڑکیوں سے دیکھ سکتے ہیں, کلام کو پڑھ سکتے ہیں, دوسروں کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں, ابھی ہمارے دانت جو ہے وہ پیستے ہیں, ہم کھائیں پیئیں, طاقت حاصل کریں اور خدا کا کام کریں. ابھی ہماری جو نغمہ کی بیٹیاں ہیں وہ ضعیف نہیں ہوئی,
کیونکہ وہ طاقت میں ہے. ابھی ہم خدا کی پرستش کر سکتے ہیں, ہم اس کا نام لے سکتے ہیں, لیکن یہ جو لفظ ابھی ہے, آخر میں بتا کے آمین کریں گے. لفظ ابھی کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن آئے گا ضرور. یاد رکھنا, یہ کنڈیشن ہے. جب کوئی کہتا ہے کہ ابھی آپ پہ یہ حالت نہیں آئی, اٹس مین کہ یہ وقت ضرور آئے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کلام مقدس کوئی بات ہمیں چیلنج کرے اور وہ پوری نہ ہو. آج ہماری زندگیوں کے اندر جوانی کے بعد بڑھاپا آتا ہے. آج ہمارے ہاتھ تھر تھرانا شروع ہوتے ہیں, ہماری ٹانگیں, ہماری آنکھیں, ہمارے دانت, ہر چیز جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا, لیکن یہ وقت آئے گا. لہذا آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی زندگیوں پہ غور کریں. غور کریں اپنی زندگیوں پہ. میں چاہتا ہوں خاموشی کے ساتھ صرف 30 سیکنڈ کے لیے چپ کر کے غور کریں. غور کریں آج کی نصیحت پہ غور